Hi guys, welcome to Screen Guru. So here I am with our next video, that is class 4 of English vocabulary series. Today we won't have synonyms or meanings, but we will take care about we will look into idioms and phrases. Okay? This is one of the most important, like synonyms और antonyms तो बहुत सारे, लेकिन idioms और phrases है ना, वो थोड़े selected ones होते हैं. जैसे कि they are also innumerable idioms and phrases, but they are limited in comparison with the synonyms and antonyms. तो synonyms and antonyms तो ऐसी चीज़ है कि आप जितना पढ़ते रहोगे उतना कम है, लेकिन idioms phrases है ना, वो repeat होते रहते हैं. If you try to use it, it is very easy to understand them. So in today's video we will cover that part of our syllabus for the competitive exams. ठीक है? So let's start with the quote. You will die, but your deeds won't. Isn't it very true, guys? Everything which has taken a birth is sure to die, but the deeds won't. It means whatever inventions you are doing, whatever discoveries you might do in the science, technology, in whatever field you are working in, or you are pursuing any particular goal, or you are pursuing any particular career in which you are making a mark, make sure that your deeds are good enough that it is not just for your individual capacity, but it is for a very higher purpose, because that is what is going to last. Even today we have the ideals of liberty, equality, fraternity. These are the ideals given by some few people, right? So even if they die, we have their ideals, we have the inventions, whatever we are using. I am using the technology that has some particular inventors behind it, the discoverers behind it. So make sure your deeds are noteworthy. So with this we will start with our video. So our first phrase is tickled pink. It means to be extremely pleased about something. I can make a sentence like Ram was tickled pink. It means he was extremely pleased about something. We can make a full sentence like Ram was tickled pink after his selection. मतलब उसका selection हो गया, उसके बाद वो बहुत pleased था. अभी selection किसका होगा तो वो बहुत खुश होगा ना, तो आप क्या use कर सकते हो? tickled pink. ठीक है? Then second one is easy one, by and by. By and by मतलब gradually, slowly. ठीक है? Gradually मतलब एक के बाद एक ऐसा simultaneously हो रहा है. Simultaneously can also be a word by and by के लिए. Third is an eyewash. The thief gave an eyewash to the police. It means they gave a pretense. So यहाँ presence नहीं है, ये pretense होना चाहिए. ठीक है? ओके, मैं इसको कट कर देता हूँ. यहाँ pretense होना चाहिए. That was a auto correct. तो यहाँ ये नोट कर लीजिएगा कि this is a pretense. A pretense मतलब धोखा देना, एक फॉल्स चीज़ बताना कि थीफ ने ऐसे कुछ काम किया, टेक्नोलॉजी कुछ यूज़ की कि उसने उसका गलत लोकेशन भेजा पुलिस को. सो दैट इज़ एन आई वॉश. द थीफ गिव एन आई वॉश टू द पुलिस. ऐसे आप सेंटेंस बना सकते हो. द फोर्थ इज ऑल अगॉग. ऑल अगॉग मीन्स टू बी अमेज्ड और एक्साइटेड. आई एम ऑल अगॉग. इट मीन्स राम वॉज ऑल अगॉग, रहीम वॉज ऑल अगॉग, देन वी कैन यूज सुजय वॉज ऑल अगॉग, जो भी नाम आपको यूज़ करना हो. Pari was all agog. It means he was very amazed or excited about something. That might be for his interview, that might be for some picnic, कुछ भी हो सकता है. बस आपको ये याद रखना है कि all agog. Agog मतलब agog जब भी आएगा तो amazed, excited. That is a positive one. तो ये positive है idiom. ठीक है? The fifth is give cold shoulder. अब ये negative है, cold. कोल्ड हर बार हम थोड़ा नेगेटिव से करते हैं ना. कोल्ड देखिए इलनेस भी होता है. कोल्ड में हम ये भी करते हैं कि उसकी एनर्जी कम हो गई, ही वेंट कोल्ड, द बॉडी इज कोल्ड. मरने के बाद बॉडी कोल्ड हो जाती है. तो कोल्ड जब भी आएगा ना तो वो थोड़ा नेगेटिव हो जाता है. ठीक है? इट इज़ मेजॉरिटी टाइम्स नेगेटिव इडियम और फ्रेज और सेंटेंस. सो ये कोल्ड है ना, तो गिव कोल्ड शोल्डर का मतलब ये होता है कि टू इग्नोर समवन. शी गेव अ कोल्ड शोल्डर टू, क्या कुछ भी नाम दे दो, सुजय, कुछ भी नाम दे दो. ठीक है? शी गेव अ कोल्ड शोल्डर टू हिम. हाँ, ऐसे भी बोल सकते हैं, टू हिम. इट मीन्स व्हाट डिड शी डू? शी इग्नोर्ड हिम, इग्नोर दैट पर्सन. ठीक है? तो ये नेगेटिव है. ऐसे नेगेटिव पॉजिटिव करोगे ना, आपको इजीली समझ आ जाएगा. सिक्स्थ इज टर्न ओवर अ न्यू लीफ. अभी टर्न ओवर अ न्यू लीफ आपको ये लिटरल मीनिंग से पता चल जाएगा. मोस्ट ऑफ द फ्रेजेस आर व्हाट इफ यू टेक द लिटरल मीनिंग यू कैन गेट अ पर्टिकुलर मीनिंग फ्रॉम दैट. अभी टर्न ओवर अ न्यू लीफ, अभी लीफ की जगह मतलब एक नया पन्ना. अगर हम हिंदी में बोले इसे तो एक नया पन्ना
शुरुआत करना, एक नए सिरे से शुरुआत करना. सो दैट इज़ लाइक इट टू स्टार्ट टू एक्ट इन अ मोर रिस्पॉन्सिबल मैनर. एक नए पन्ने की शुरुआत और रिस्पॉन्सिबल बहुत एक्सपीरियंस से शुरुआत करेंगे. ऐसे ही हर एक फेलियर के बाद आप हर एक नई शुरुआत करते हैं ना, हर एक दिन पकड़ लीजिए, हर एक दिन हम नई शुरुआत करते हैं कल के एक्सपीरियंस से और परसों के हमारे जो भी कल के होप्स या फिर ड्रीम्स होंगे उसके लिए. सो दैट इज़ अ टर्न ओवर अ न्यू लीफ. दिस इज़ ऑल्सो ईजी वन. देन 7th इज़ डॉग इन अ मैंगर. डॉग इन अ मैंगर मतलब अ सेल्फिश पर्सन. ये नेगेटिव है तो याद रखना. डॉग मोस्टली पॉजिटिव भी लेते हैं उसको, नेगेटिव भी लेते हैं, वो न्यूट्रल. इट डिपेंड्स ऑन द अदर वर्ड्स. अभी मैंगर आ गया इसलिए वो नेगेटिव हो गया. अब सेल्फिश पर्सन, अ सेल्फिश पर्सन इज कॉल्ड अ डॉग इन अ मैंगर. 8th इज अंडर द वेदर. अंडर द वेदर मतलब अभी अंडर द वेदर देखिए, वेदर हम लोग मोस्टली तब यूज़ करते हैं जबकि वो नेगेटिव होता है. अंडर द वेदर, वेदर के अंडर, ऐसा अगर लिटरल मीनिंग लोगे तो आपको पता चल जाएगा दिस साउंड्स अ लिटिल बिट नेगेटिव. सो इट शोज दैट इट मीन्स नॉट वेल और इल. ही इज़ अंडर द वेदर, इट मीन्स ही इज़ अनवेल, ही इज़ इल. 9th is live on. He had that much money to live on. It means he had that much money for his daily needs. उसके डेली जो भी नीड्स होता है. डेली नीड्स क्या होता है हमारे, जो खाना खा सकते हैं, एक शेल्टर हो हमारे पास, ठीक है, यही सब तो डेली नीड्स होते हैं. खाना पीना, 3 टाइम का खाना, ये सब डेली नीड्स. तो डेली नीड्स के लिए उसके पास उतने पैसे थे. वैसा सेंटेंस हमने बनाया किस पे, लिव ऑन के ऊपर. ठीक है, चलिए. द नेक्स्ट वुड बी ग्लैड टू सी बैक ऑफ. ठीक है, बैक इज अ इम्पॉर्टेंट वर्ड इन दिस फ्रेज. टू ग्लैड टू सी बैक ऑफ मतलब अब कोई इंसान जा रहा है तो उसकी हमें पीठ ही दिखेगी ना, तो ऐसा उल्टा तो चल के नहीं जाएगा अनलेस एंड अंटिल ही इज अ गोस्ट और समथिंग लाइक दैट. सो बी ग्लैड टू सी बैक ऑफ मतलब किसी की पीठ देख के अगर हम ग्लैड हो रहे हैं मतलब खुश हो रहे हैं, तो उसका मतलब लिटरल मीनिंग भी आप अगर समझ जा रहे हो तो उसका यही मतलब होगा ना, टू बी हैप्पी व्हेन अ पर्सन लीव्स. वो चला जा रहा है अपने लाइफ से, मतलब कोई इरिटेटिंग एकदम टॉक्सिक पर्सन पीपल होते हैं ना हमारे लाइफ से, अगर चले जा रहे हैं तो हमें खुशी होती है. सो वी कैन यूज दिस पर्टिकुलर फ्रेज, आई एम ग्लैड टू सी हिज बैक ऑफ. आई एम ग्लैड टू सी हर बैक ऑफ. ऐसे आई एम ग्लैड टू सी हर बैक. ऐसे. चलिए. 11th वुड बी नो फ्लाइज ऑन यू. नो फ्लाइज ऑन यू. फ्लाइज नेगेटिव, नो फ्लाइज मतलब पॉजिटिव. समझा आपको. फ्लाई इज नेगेटिव, फ्लाई को थोड़ी पॉजिटिव यूज़ करते हैं हम. फ्लाई क्या, मक्खी को हम पॉजिटिव में थोड़ी लेंगे कभी. तो मक्खी इज़ नेगेटिव एंड नो मक्खी मीन्स पॉजिटिव. सो नो फ्लाइज ऑन यू मतलब टू बी स्मार्ट. ये हमेशा याद रहेगा आपको. मक्खी से रिलेट करिएगा इसको, टू बी स्मार्ट. चलिए आगे बढ़ते हैं. वी हैव द लास्ट 4 विद अस. 12th इज टू रन अ टाइट शिप. शिप का मीनिंग होता है हम अगर रियल लाइफ में ले तो शिप का मीनिंग होता है हमारा डेली रूटीन. टाइट शिप मतलब वेल ऑर्गेनाइज्ड. आपको ये डायरेक्टली मतलब लिटरल मीनिंग भी लोगे आप तो भी आपको समझ में आ जाएगा. शिप चलाना भी ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा ना आपको. कौन चलाएगा, कौन अंदर जो भी लोग रहेंगे उनको देखेगा, कौन सिक्योरिटी देखेगा, कौन एक दूसरे से वो लोकेशंस मैप करेगा. ये सब अलग अलग लोग होते हैं. तो उसके लिए हम यू हैव टू बी वेल ऑर्गेनाइज्ड. So even if you take the literal meaning, you will get through the options. Options पढ़ लोगे ना आपको आइडिया आ जाएगा. अब ये थोड़े easy भी है और tricky भी है. जो 13, 14, 15 है ना, मैंने बहुत जानबूझकर डाला है. ये क्वेश्चन अगर पूछे जाएंगे तो that might be very easy for you or that might be quite tricky and you will make a silly mistake. अभी इनका कैसे होता है, ये जो फ्रेज है ना, इनका एक मीनिंग नहीं होता. दैट डिपेंड्स ऑन द इनिशियल सेंटेंस. पूरा सेंटेंस आपको पढ़ना पड़ेगा. सिर्फ टर्न अप के ऊपर ऐसे आपको पूछेंगे नहीं वो लोग. टर्न अप के अगर वो पूछेंगे तो फिर एकदम पोलराइज्ड ऑप्शंस देंगे वो लोग. ठीक है, मिलते जुलते ऑप्शन नहीं दे सकते बिकॉज इट डजेंट हैव अ वेरी स्पेसिफिक मीनिंग. अभी टर्न अप का मीनिंग आप क्या कर सकते हो, अपीयर. अभी अपीयर के ऊपर कैसे सेंटेंस बनाए, वी कैन मेक अ सेंटेंस लाइक सुजाता टर्नड अप to the party. It means she appeared for the party. वो आ गई पार्टी में. Now, if I'm saying someone turn up the volume, it means क्या, increase करो volume या फिर temperature, इसी का temperature बढ़ाओ कम करो, ये सब बात कर रहे हैं. So increasing temperature, volume and appearing are both very different things. They are like a polarized thing and not even of a same coin. मतलब ऐसा भी नहीं कि वो लोग opposites है. They are very different meanings. They are not even opposites. They are not even synonyms. ठीक है, तो पूरा सेंटेंस पढ़िएगा ये जब भी होता है और ट्राई टू मेक मीनिंग समथिंग आउट ऑफ दैट.
टर्न अप का मीनिंग क्या हो सकता है? अपीयर हो सकता है, इंक्रीजिंग टेम्परेचर, वॉल्यूम हो सकता है, और फिर बाकी कुछ भी हो सकता है एक्सेट्रा। 14th का दो मीनिंग हो सकते हैं। वन इज आई टर्नड इन माई असाइनमेंट, इट मीन्स आई सबमिटेड, ठीक है। और दूसरा हो सकता है हैंड इन। हैंड इन मतलब भी सबमिट करना, सबमिट की जगह हम हैंड इन यूज भी कर सकते हैं वर्ड। 15th वुड बी टर्न डाउन, आई टर्न डाउन इज ऑफर। जडेजा टर्न डाउन द ऑफर, ये जडेजा जो प्लेयर है उसको कुछ ऑफर आया होगा ऐड वगैरह, तो उसका सेंटेंस हम कैसे बना सकते हैं? और उसने टर्न डाउन कर दिया। टर्न डाउन मतलब he did not allow that, he did not take it up, वो भी हम कर सकते हैं। और दिस माइट बी द अदर मीनिंग, नॉट अलाउ समवन टू एंटर, ठीक है। टर्न डाउन का मीनिंग ये भी होता है कि अगर किसी ने परमिशन पूछा, आई टर्न डाउन, इट मीन्स आई डिडंट अलाउ दैट पर्सन टू एंटर द प्लेस, ठीक है। मतलब मैं उससे एग्री नहीं करता, ये भी हो सकता है मैं उससे एग्री नहीं करता। एंड सेकेंड वुड बी आई डिडंट अलाउ दैट पर्सन टू एंटर द प्लेस, यहाँ कॉमा के एक्सेट्रा आ जाएगा। हाँ, मैंने जो बोला ना आपको मीनिंग वाला, कि आई डिडंट एग्री विद दैट पर्सन, आई टर्न डाउन द ऑफर, ऐसे भी सेंटेंस बना सकते हैं, आपने पढ़े भी होंगे ऐसे सेंटेंस। आई टर्न डाउन द ऑफर, इट मीन्स आई डोंट एग्री विद दैट, आई एग्री विथ यू, आई वुडंट लाइक टू गिव माई सेल्फ दैट अपॉर्चुनिटी, दैट ऑफर, मतलब मुझे मंजूर नहीं है आपका ऑफर। चलिए आगे बढ़ते हैं। होमवर्क, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एंड टुडे वी ऑल्सो हैव, नया टॉपिक था तो सिनोनिम्स मीनिंग्स से होमवर्क भी नया होगा, राइट। सो यू हैव टू फाइंड एंटोनिम्स। अब ये सिनोनिम्स मीनिंग्स होता है ना, ये बहुत इजी होता है, मतलब उसमें कैसे आपको एक ही स्टेप करना होता है, आपको एक मीनिंग ढूंढोगे, मीनिंग से आपको सिनोनिम तो पता ही चल जाएगा। और मोस्ट ऑफ द मीनिंग्स आर व्हाट, दे आर सिनोनिम्स, ऐसे अलग अलग नहीं होते, ठीक है। तो अभी एंटोनिम्स में क्या करना होता है, आपको अपोजिट शब्द ढूंढना होता है। अभी अपोजिट अगर किसी का आपको ढूंढना है तो पहले उसका मीनिंग तो पता ही रहना होगा आपको। So first thing is you will have to find the meanings or synonyms, and then you will have to take step 2, that is finding the very opposite meaning of that. So first you have obviate, second is measly, third is stingy, fourth is paltry, fifth is staid. बहुत नए नए शब्द है, थोड़ा I can say you have to be careful while using these words. It has a very different meaning, ये हम डेली लाइफ में यूज़ नहीं करते, लेकिन आप जब ढूंढोगे ना आपको पता चल जाएगा इनके बारे में, ठीक है। सो दैट स्क्रीन गुरु फॉर यू, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।